Hi everyone, good morning and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself, Juhi Sharma, and here we are with yet another video, right, which is for class 12, economics class 12, right? And the topic which we're going to cover today is methods of calculating national income. Now, this is one such topic from which we get a lot of questions in our exams, right? And having said that, you have your subjective type of paper in term two, so you need to be very, very strong in the national income part too. Now, there are two types of students. There is one set which considers this national income wala part very easy. उनको बिल्कुल भी difficult नहीं लगता है. But there's another set of people, there's another set of students जिनको national income वाला part बहुत ही ज़्यादा difficult लगता है, right? So if you ask me personally what kind of a student I was, so I was in the latter category. I found it very, very difficult to understand things about national income, right? But again, if you know it, you will get full marks in this, okay? So, before wasting too much of time, let me tell you guys that for class 12, we do these YouTube lives, these economics YouTube lives for revising your economic concepts on every Saturday. Hello, Abe. On every Saturday at 10:30 a.m. Okay. Every Saturday, 10:30 a.m., we do these lives for class 12. Now, if you have your friends or siblings in class 11 by any means or by any chance, so for them also we have got them covered too, and we have the sessions for class 11 on every Wednesday at 9 p.m. Now, again, I would like to tell you one thing, that if you guys miss these YouTube lives, if you're not available at 10:30 a.m. on Saturday or 9 p.m. on Wednesday, if you miss those lives, so don't worry. We have this playlist called CBSE Economics Special on Pratham Test Prep's channel. You can just go to that playlist, browse that, and you can get revised each and every concept which you have missed, right? So, if I have to tell you about the methods of calculating national income, so there are basically three methods by which we can calculate national income, right? तीन मेथड से हम national income जो है वो calculate कर सकते हैं. Now, let me quickly tell you that what all have we covered in the previous session. Previous session, I have told you about the. I want you all to know कि factors of production है क्या, basically what are the factors of production, right? और उसके साथ साथ, because जब भी हम circular flow of income पढ़ते हैं या जब भी हम national income पढ़ते हैं, तो उससे पहले we need to understand these factors of production. Now this thing is very, very easy, so I'll quickly take this slide up. Now we have, for any commodity or for any good to get produced, right, there are four factors of production. There are four basic factors of production. Number one, we have land. Number two, we have labor. Number three, we have capital. And number four, we have entrepreneur, right? Land, labor, capital, entrepreneur. So these are the factors of production, right? अब जब ये factors of production है, तो obviously इनका कोई factor payment होगा, right? लैंड का पेमेंट किस फॉर्म में होगा? लैंड का पेमेंट होगा इन द फॉर्म, सिंस इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, राइट? Since it is a fixed asset, so rent का payment किसमें होगा? Land will get paid in the form of rent, right? Since labor है, labor का किसमें होगा? Labor का होगा in the form of wages or salaries. So the factor payment for labor is wages or salaries. Capital का किसमें होगा? Capital means assets, उसका आपका हो सकता है in the form of interest. And finally, if I have to tell you about entrepreneur, अभी entrepreneur कुछ चीज अगर produce कर रहा है, कोई good or commodity produce कर रहा है, तो वो ऐसे ही तो नहीं करेगा. Entrepreneur would definitely need some sort of a profit. So entrepreneur का क्या होता है? Entrepreneur का payment होता है in the form of profit. So these are the four factors of production. We have land, labor, capital, entrepreneur, and उनका जो factor payment होता है, that is rent, wages or salaries, interest, and profit respectively. Right? So these are the four factors of production that we have. Okay. Now, moving on to the methods of calculating national income, which I have told you that there are three methods of calculating national income. आपको जब भी अगर question दिया जाएगा exam में, they will clearly specify that
by using value added method or by using product method or expenditure method or income method, calculate the national income or so and so, right? So when you're saying that methods of calculating national income, so there are three methods. Number one is the value added method, which is also known as the product method. This value added method is also known as the product method. The second type of method to calculate national income is the expenditure method. And jo aapka third type hai, good morning Siddhant, third type of method hai, that is the income method of calculating national income, right? So these are the three methods by which we can calculate national income. Okay, now you need to also know one thing, that ये सारा जो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, ये दो टाइप के प्राइसेस पर होता है. ये या तो आपका होगा एट फैक्टर कॉस्ट और ये आपका होगा इधर एट मार्केट प्राइस. ठीक है. नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स होते हैं आपके. फॉर एग्जांपल आपका जीएनपी हो गया, आपका जीडीपी हो गया, आपका एनएनपी हो गया, राइट, आपका एनडीपी हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. So there are a lot of national income related aggregates too, right? So वो aggregates भी जो होते हैं आपके, either they are on factor cost or they are on market price. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है जिसमें आपका, यू कैन ऑल्सो से दैट फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली द प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट? प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो आपका एक तरीके से बोल सकते हो फैक्टर कॉस्ट होता है. नाउ मार्केट प्राइस जो है वो ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट से हायर होगा. बिकॉज वाई? बिकॉज आपका जो उसमें टैक्सेस ऐड होंगे, जो भी सब्सिडीज होंगी वो होंगी, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी. तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस यू कैन से इज द एमआरपी, right? So there are two ways, it's factor cost and market price, and in depth we'll be discussing about these things at the later stages. But now quickly see that what all are these three methods of calculating national income, right? So if I have to tell you about the value added method, now you need to be very, very sure about this thing, that this value added method is also known as what? It is also known as product method or the output method. Okay. Value added method को हम product method और क्या output method भी बोलते हैं, right? Now ये जो आपका method है, this value added method, it is used for calculating national income in India. उसमें क्या होता है आपका, कि जितने भी आपके जो goods हैं, commodities हैं, उनका जब आपका क्या होता है, उनका जब आपका प्रोडक्शन होता है तो वेरियस स्टेजेस पर है, राइट? तो हम वेरियस स्टेजेस वाला जो उनका प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल if a manufacturer is making bread, right? So various stages of production पे क्या है, we can calculate or we can take the value of that product and calculate the national income, right? Now ये जो आपका national income जिससे calculate होता है using the value added method, इसके लिए we use the formula कि जो national income है, अगर आपका national income उन्होंने निकालने बोला है, for that we use the formula NDP at factor cost plus net factor income from abroad, net domestic product at factor cost. ये net domestic product specifically क्या है, ये I'll tell you in the further slides. But जब आपको value added method से निकालना है, this is the standard formula which you can use, right? That is net domestic product at factor cost, including the NFIA, that is net factor income from abroad. राइट नाउ अब आपको बहुत बार क्या हो सकता है कि एग्जाम्स में आपको सीधा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू ना दी जाए, राइट? दे माइट नॉट गिव यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू मिल जाती है in certain cases, but NDP at factor cost we have to calculate, क्योंकि और भी हमारे पास चीजें दे रखी होती हैं, उन सारी चीजों से कैलकुलेट करके पहले हम NDP at FC निकालेंगे, उसके बाद उसमें हम NFI ऐड करेंगे, and then we can calculate national income by the value added method. Okay, now if I have to tell you about the second method of calculating national income, that is the expenditure method. अब इसमें क्या है, value added method में क्या था, value added method as I have told you is also known as the product or output method,
राइट, इसको हम प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो भी आपका प्रोडक्शन का स्टेजेस है, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के जो वेरियस स्टेजेस हैं, उसमें किसी भी स्टेज का वी कैन ऐड वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट और आउटपुट, राइट। लेकिन जब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें वी कंसिडर द एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग डन, राइट, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। जो ये जो कैलकुलेशन है इन दी एक्सपेंडिचर मेथड, किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ऑफ द एक्सपेंडिचर जो आपके इकोनॉमी में, जो आपके कंट्री में हो रहे हैं। नाउ इकोनॉमी में, कंट्री में क्या कौन कौन से एंटिटीज हमारे हो सकते हैं, देयर आर इंडिविजुअल्स, राइट, हमारे इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद कौन है, हमारी फर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि हाउस होल्ड्स, कह सकते हो इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स, राइट। नेक्स्ट व्हाट यू कैन कैलकुलेट, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कर रही है, वो आप इंक्लूड कर दीजिए। हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, राइट, वो हमारे कुछ कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सपेंडिचर मेथड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, राइट। सो जितने भी आपके, अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कर रही है, गवर्नमेंट आपका इधर एक्सपोर्ट कर रही है या इम्पोर्ट कर रही है, राइट, इस टाइप का होता है। तो इसमें इन सारी चीजों को ऐड किया जाता है। ओके, सो व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग national income by using the expenditure method, we take into consideration the expenditure which is being taking place in the economy. इकोनॉमी में जैसा भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर चाहे वो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए कर रहा हो, वो गवर्नमेंट कर रही हो, वो कोई बिजनेस हाउस कर रहा हो, कोई सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है, ये सारी चीजें टेक्स इनटू कंसिडरेशन। इनको ऐड करके वी फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो आई एम हाइलाइटिंग दिस दैट एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल income is based on the expenditures taking place in the economy. कौन कौन करता है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दी गवर्नमेंट। अब अगर आपको ये चीज इतनी समझ आ गई है, नाउ यू कैन डिराइव, you can deduce the formula why by using this definition only which I've explained it to you, right? What formula can be used? The formula for calculating national income is C plus G plus I. ये आपका फॉर्मूला है जिसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करा है, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस हाउसेस के इन्वेस्टमेंट्स एंड आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हुए हैं उसका डिफरेंस, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, जिसको हम एनएक्स से भी डिटरमाइन करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। अभी आपको क्या है, सारे के वैल्यूज दिए हो सकते हैं, जस्ट डू द कैलकुलेशन, जस्ट डू द मैथमेटिक्स एंड यू विल बी इजीली एबल टू डू द what calculate national income by using the expenditure method. Now the point is that expenditure method or value added method or product method जो कि वो relatively easy होता है to calculate, right? बहुत ज्यादा जो हमारा टाइम और काफी बच्चों को, when I talk to students, a lot of students say कि मैम वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर हो जाता है, बट मैम इनकम मेथड में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब ये इनकम मेथड से कैलकुलेट करने में व्हाई डू दे फेस सच एन इशू और सच अ प्रॉब्लम? द मेन रीजन फॉर दैट इज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द इनकम मेथड। बिकॉज अगर हम इनकम की बात करते हैं, सो इनकम में क्या है, आपका इनकम में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपको क्या है कि अगर आप इनकम की बात करते हो, सो यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू इंक्लूड द इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, जनरेटेड फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इन सारी चीजों को हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है। अब आपका क्या है, दैट दिस इनकम मेथड is basically based on the income. As the name suggests, इनकम पर ये आपका डिपेंड करता है। फिर वो इंडिविजुअल की हो सकती है, कंट्री की हो सकती है, या फिर जितने भी एसेट्स हैं उनसे जो आपको चीजें मिल रही हैं, राइट, लाइक द इंटरेस्ट, कैपिटल से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें वी नीड टू कैलकुलेट। सो इन दिस इनकम मेथड, नो, द पॉइंट इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ आई वुड से वेरिएबल्स कह सकते हैं, या फिर लॉट ऑफ थिंग्स दे कंबाइन, एंड उसके बाद आप इनकम मेथड से वी कैन फाइंड और वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम, राइट। अब अगर मैं आपको बात बताती हूँ कि लैंड का, चलो मैंने बोल दिया, लैंड से हमें मिल जाएगा, राइट, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इन सारी चीजों से हमको मिल जाएगा। लेकिन इज इट
सफिशिएंट? नो, बिकॉज इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं. अब कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट देयर इनकम? सो उसके लिए भी चीजें आपकी हैं, राइट? उसको क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन पीपल जो आपका क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका करेंगे, राइट? बहुत सारी चीजें जो है वो सारी इसमें आपकी इंक्लूडेड होती है इनकम मेथड. एंड दैट्स द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स दे फाइंड दिस इनकम मेथड slightly lengthy and slightly difficult to understand. Okay, but if I have to tell you about income method, it is the method which is based on the income generated by the individuals by providing their services to the other people in the country. अब वो services क्या हो सकती हैं, individually भी हो सकती हैं और at जो अलग level है उसका भी हो सकता है. अब इसमें क्या है, इनकम मेथड में आपका क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, तो उसका जो फैक्टर पेमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरीज और वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी चीजें भी आपकी इंक्लूड होंगी. ये सारी चीजें भी कंसिडर, राइट? इन सारी चीजों को आपका क्या है, वी एड अप दीज थिंग्स. ठीक है, कुछ जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं इकोनॉमी में, उनका भी वी हैव टू एड अप. ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, ये सारी चीजें आपकी बनाती है एनडीपी एट फैक्टर cost, right? This makes your NDP, that is net domestic product at factor cost. But we should not forget कि भाई इनकम मेथड तो है, बट वी नीड टू इंक्लूड द अब्रॉड वाली इनकम भी तो ना, एनएफआई भी तो हमें इंक्लूड करना है ना, राइट? बिकॉज इट इज ऑल्सो एट टाइम्स इंक्लूडेड इन व्हाट, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. वी हैव टू इंक्लूड द इनकम विच वी आर गेटिंग फ्रॉम अब्रॉड, राइट? सो क्या है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? बाय यूजिंग द इनकम मेथड वी हैव दिस फॉर्मूला एनडीपी एट फैक्टर cost plus NFIA. And one thing you need to be very very sure, at times I still remember, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जब उन्होंने नेशनल इनकम एक उन्होंने पूरा क्वेश्चन दे रखा था एंड दे हैव आस्क्ड कि यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय ऑल द थ्री वेज, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों से उन्होंने नेशनल इनकम का निकलवाया था क्वेश्चन. नाउ क्या होता है हमारी एक चीज हो जाती है कि हम कैलकुलेशन में एट टाइम्स मिस्टेक कर देते हैं, राइट? बट द बेस्ट वे टू यू नो चेक योर आंसर इज कि आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्टिव वैल्यू एडेड मेथड से आपका आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए. ओके, आंसर जो है वो आपका सेम आना चाहिए. अगर आपका आंसर सेम है, दैट मीन्स यू हैव डन द कैलकुलेशन करेक्टली. सो दिस इज द इनकम मेथड. नाउ after that I have to tell you about few national income से related aggregates. आपने देखा हम इतनी देर से बात कर रहे हैं एनएनपी की, जीडीपी की, जीएनपी की, right? That is, these are few of the national income से related आपके aggregates. Okay, GNP, that is gross national product, right? GDP, gross domestic product. Okay, GNP में क्या है? GNP is the value of goods and services which are produced in a given time period of time, जो आपके एक given period of time में produce होता है, right? Money value of the final goods and services which are produced by the nationals of a country, by the nationals of a country. national जब है, GDP है, sorry, GNP है, gross national product. national जब word आ रहा है, that means by the nationals of a country, right? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर एग्रीगेट में वी कैलकुलेट ऑल द money value of all the goods and services which are being produced in the country or within the domestic territory, right? Within the domestic territory or boundary. So domestic है तो आपको उससे याद रखना है, नेशनल है तो ऑल द नेशनल्स का कंट्री. उसके बाद आपका एनएनपी है, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट. अभी एनएनपी भी आपका क्या होता है, दो उस पे होता है. एनएनपी एट आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया. जीडीपी भी आपका ऐसी दो चीजों पर होता है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. जीएनपी भी आपका दो पे हुआ, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, राइट? उसके बाद वी हैव पर्सनल इनकम एंड वी हैव पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. नाउ जितनी भी इनकम आपकी होती है कंज्यूमर की या फिर किसी की जितनी भी इनकम है, दैट डजंट मीन ऑल द इनकम
आप यूज करोगे या फिर क्या है, नो, यू विल पुट सम इनकम फॉर सेविंग्स, कुछ आपकी टैक्सेस में चले जाएंगी. सो ये जो डिविजन है जो आपकी इनकम का आता है, दैट इज ऑल अबाउट पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, so we'll quickly see these aggregates one by one. So let's start with gross domestic product at market price. अभी मैंने आपको clearly बता दिया था what is gross domestic product at market price. Market price वाली बात है, that means क्या है आपका, आपका जितना भी final goods and services का जो market में है, factor cost नहीं, it includes the taxes and subsidies whatever, right? So GDP at market price क्या होता है, that is the gross market value of all the final goods and services जो आपकी produce हो रही हैं within the domestic territory of a country in an accounting year or in a financial year. ध्यान रखें, domestic word है, so within the domestic territory. आपको ये चीज नहीं भूलनी है, right? इसमें आपका क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका मार्केट प्राइस में, जैसे मैंने बताया था, मार्केट प्राइस में आपके टैक्सेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके इंक्लूडेड होते हैं. Now, how this market price is different from factor cost? Factor cost से market price, अगर आपने देखा होगा, market price बोल सकते हो आप MRP. ब्रैकेट में कोई भी आपके आसपास कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ देखा हो या कुछ भी हो, या अगर आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हो, राइट, तो उसमें क्या होता है, अगर टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते तो वो टैक्सेस का अलग से लिख देते हैं, राइट. और कई बार क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें आप ब्रैकेट में लिखते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, राइट. दैट इज द मार्केट प्राइस, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. बट इज दैट प्राइस सेम टू द प्राइस विच जिससे वो प्रोडक्ट जो है वो बना है, मतलब क्या उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम होगा, क्या उसका फैक्टर कॉस्ट भी सेम होगा? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज जब भी हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, in factor cost we exclude the net indirect taxes, we minus the net indirect taxes. हम जो indirect taxes है उनको हम डिड्यूस कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट में आपके इंक्लूडेड नहीं होते. सो अगर आपको डेफिनेशन आती है पूछना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, केवल एक यही वेरिएशन इसमें आपको लिखना है कि इंक्लूड कि एक्सक्लूडिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में, बाकी सारा पूरा रहेगा. that it is the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year excluding the indirect taxes, net indirect taxes. ठीक है. उसके बाद if I have to tell you about net domestic product at market price, NDP at market price, तो ये आपका क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अगेन डोमेस्टिक है तो क्या मतलब है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब ये हमारा है नेट, हम ग्रॉस की बात नहीं कर रहे, ये है हमारा नेट. नेट में क्या इंक्लूड होगा, नेट में इंक्लूड होगा सब. ठीक है, कौन सब, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है और जो नॉन रेजिडेंट्स भी हैं. ठीक है, जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स है जो कंट्री में रह रहे हैं, और जो नॉन रेजिडेंट्स है, मतलब आपके कुछ 1 साल से ऊपर अगर कोई बाहर का कोई एम्बेसी है कुछ भी, अगर वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे और इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उसके वेलफेयर के लिए, ये पूरा is one topic which CBSE has given you. I'll cover that in the next session next week. सो इन सबको इंक्लूड करके एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपका होता है वो आपका बनाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ नेट मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country by normal residents and non-residents, right? अब अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है मार्केट प्राइस पे, राइट, वो आपका सिमिलर होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे माइनस दी डेप्रिसिएशन. ये आपको याद रखना है. एनडीपी से जीडीपी में चेंज करना है, चाहे वो किसी में भी हो, एनडीपी बनाना है और जीडीपी आपके पास है, यू हैव टू माइनस दी डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द रेगुलर वेयर एंड टेयर. Depreciation is the regular wear and tear of an assets. ठीक है, सो ये क्या है आपका, ये है आपका depreciation. एनडीपी से जब आपको जीडीपी में एन से नेशनल से ग्रॉस, आपको ग्रॉस गिवन और आपको नेशनल निकालना है, माइनस द डेप्रिसिएशन एंड द वर्क इज डन, राइट.
उसके बाद आपका एक अदर जो एग्रीगेट है वो है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अभी तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट मार्केट प्राइस, बट नाउ फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट में क्या, अगेन वी हैव टू, फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट में माइनस होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. डिफरेंस विल बी कि एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है माइनस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. एंड इसीलिए ये जो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसको वी से एज द डोमेस्टिक इनकम. इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी बोलते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. सिंपल है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब भी चेंज करने को है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू एक्सक्लूड द टैक्सेस. व्हाई? बिकॉज मार्केट प्राइस जो आपका होता है वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, फैक्टर कॉस्ट में वैसा नहीं होता. सिंपल, राइट. और अगर आपको नेशनल डोमेस्टिक वाला निकालना हो, नेट वाला निकालो फ्रॉम ग्रॉस, तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन ग्रॉस से माइनस कर दो, बिकॉज उसमें आपका डेप्रिसिएशन डजंट गेट इंक्लूडेड इन द नेट प्रोडक्ट. ठीक है. उसके बाद इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या आपका होता है, अगेन ये है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. ग्रॉस नेशनल पूछा है, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री से जो भी आपका है वो आपका निकालना है. अब इसमें क्या है, इसमें यू कैन इंक्लूड द NFIA2, यू शुड इंक्लूड द NFIA2, राइट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट वाली चीज आ गई. मैंने आपको क्या बताया था, जब भी फैक्टर कॉस्ट है आपका है, you have to minus what, you have to minus net indirect taxes. Everything remains the same. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सिंपल से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर दीजिए. ठीक है. उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है, अगेन all the final goods and services produced by the normal resident of a country. ध्यान रखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट की बात हो रही है. हम ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, अगर नेट की बात हो रही है तो हम किस में, ग्रॉस में से ऑलवेज माइनस डेप्रिसिएशन. दीज आर द 2-3 थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर. ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे, राइट. अगर आपका नेशनल और ग्रॉस, सॉरी नेट और ग्रॉस की बात हो रही है, सिंपल है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे. नेट में हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, ग्रॉस में आपका ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. दीज आर द 2 बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको हमेशा अपने टिप पे ऐसे रखने का है. आप रख लोगे एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब अगर मैंने आपसे पूछा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज national income. अगर आपसे if somebody asks you or in question if you ever get कि calculate the NNP at factor cost, that means they're asking you to calculate the national income, right. क्या आएगा आपका इसमें, again money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country, right. अब उसमें है आपका net national product. डेफिनेटली आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हेल्प लोगे, माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे अपना डेप्रिसिएशन. यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन बिकॉज फैक्टर कॉस्ट का पूछा है, और अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो यू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस थिंग, राइट. और आपका ये जो फैक्टर कॉस्ट से पूछा है, तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू माइनस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू, राइट. नेशनल मैंने क्या बताया था, नेट से ग्रॉस में जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो एक बार आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा, उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का निकालना है, यू हैव टू माइनस व्हाट, यू हैव टू माइनस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो ये जो 2 बेसिक फॉर्मूलेज हैं आपके, ये आपके बहुत बारी whenever you will be using, whenever you will be solving the numericals, आपके बहुत बारी यूज होंगे. Always try to not you know मगअप दीज फॉर्मूलाज. आप मगअप करोगे नहीं होगा, राइट. सिंपल सा आप अपने दिमाग में बिठा लो कि फैक्टर कॉस्ट क्या है. फैक्टर कॉस्ट है जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं करते हैं, वो हमारा केवल मार्केट प्राइस में ऐड होता है, उसमें हमारे सारे टैक्सेस ऐड होते हैं. नंबर 1. जो सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है, सेकंड फॉर्मूला आपका है कि जब भी आपको नेट निकालना हो वाया ग्रॉस, डेप्रिसिएशन माइनस ऑलवेज 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 माइनस डेप्रिसिएशन, बिकॉज नेट में
we don't calculate depreciation. जो हमारा regular wear and tear होता है of machinery of assets, we don't calculate that in in net, right? So जो भी net national निकाल रहे हो, net domestic निकाल रहे हो, जो भी निकाल रहे हो, just keep this thing in mind. So these are the two basic formulas for you. And with this, we have covered all the major national income aggregates for you guys. Thank you so much for staying tuned. If you like this video, please hit that like button. Subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already. Trust me, we come up almost daily with new content for you all, a very fresh content for all of you, so that you can revise your concepts, you can get updates about form filling, CUCT, about CBSE, if there's any notification from CBSE, and a lot more current affairs vocabulary and a lot more, right? So subscribe to Pratham Test Prep's channel, because definitely it will add a lot of value uh, to you, right? So thank you so much for staying tuned. Till then, take care. Bye bye. See you next week.